Hi everyone, I'm Shivani. Welcome to my channel. Today we'll do the poem My Mother at 66 by Kamla Das. I'll explain it in English first and then in Hindi. Watch the video till the end and please let me know how you found the video. That'll help me to make better videos in the future. Now let's begin with the explanation. This poem is written by Kamla Das, as I told you in the beginning. This is a heart-touching poem that deals with the themes of aging, contrast between youth and old age, fear of separation, etc. कमला दास ने ये दिल को छू लेने वाली कविता लिखी है. इसमें उन्होंने एजिंग, यूथ और ओल्ड एज और सेपरेशन के डर को दिखाया है. दिस पोम हैज बीन रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस punctuated by commas. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. The previous Friday morning, the poet was traveling from her parents' home to Cochin. पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को पोएट अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी. I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, a face ashen like that of a corpse. The poet notices her mother, who is sitting beside her, doze off or fall asleep with her mouth open. She also notices her mother's pale face that reminds her of a corpse. Corpse means a dead body or a lifeless body. पोएट देखती है कि उनकी मदर जो उनके साथ बैठी हैं उनको नींद आ जाती है और वो बैठे बैठे सो जाती हैं या झपकी लेने लगती हैं. उनका मुंह खुला है. आपने देखा होगा बहुत से लोग जब सोते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है. पोएट की मदर एजेड है, तभी उनको भी जल्दी नींद आ जाती. पोएट अपनी मदर का पीला चेहरा देखती हैं जो उन्हें डेड बॉडी की याद दिलाता है. एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she was as old as she looked. The poet then realizes sadly that her mother has become very old, which disturbs her emotionally as she fears of losing her mother to time and mortality or death. पोएट को बहुत दुख के साथ एहसास होता है कि उनकी माँ बहुत ओल्ड हो गई हैं, जो उनको इमोशनली या भावनात्मक रूप से बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उनके मन में माँ को खोने का डर सताता है. उनको अब समझ आता है कि उनकी माँ को वो समय और मृत्यु के पास जल्दी ही खो देंगी, क्योंकि उनकी माँ अब ओल्ड हो गई हैं. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. To distract herself from the painful thought of losing her mother, the poet looks out of the window at the young trees. The trees seem to be running past due to the motion of the car. Then she sees young children in large number rushing out of their homes, probably to play. They're going to play. The young trees and the young children symbolize youth and energy. They form a contrast to the poet's aging or old mother. अपना मन इस दुखी थॉट या विचार से अलग हटाने के लिए वो कार की खिड़की के बाहर देखने लगती हैं. उन्हें यंग ट्रीज भागते नजर आते हैं. ट्रीज एक्चुअली भाग नहीं रहे हैं, पर कार आगे बढ़ रही है, तभी ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज भी भाग रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं. तुम लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, स्पेशली ट्रेन से जाते वक्त, है ना. फिर पोएट को घर से भागते हुए निकलते बच्चे नजर आते हैं जो शायद खेलने जा रहे हैं. यंग ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन एनर्जी और यूथ को सिम्बलाइज करते हैं, जो मदर के ओल्ड एज के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, द पोएट रीचेस द एयरपोर्ट. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, she is standing some distance away from her mother, preparing to leave. This line suggests the separation between the mother and the daughter emotionally as well as physically. एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद पोएट अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है. अब वो जाने की तैयारी में है. ये लाइन मदर और पोएट के बीच इमोशनल या भावनात्मक और फिजिकल दूरियों को दिखाता है. I looked at her again, worn, pale as a late winter's moon. The
poet looks at her mother again and observes that her face has become pale and weak. Worn means tired looking or pale, as the late winter's moon, which appears pale and lifeless. The poet compares her mother's face to the late winter's moon, which looks dim and dull or lifeless. पोइट अपने मदर के वीक और पेल फेस को देखती हैं और उसे विंटर के समय के चांद से कंपेयर करती है। विंटर में चांद की रोशनी धीमी हो जाती है क्योंकि बाहर तो फॉगी रहता है, आसमान क्लियर नहीं होता है, तो चांद की रोशनी उतनी ब्राइट नहीं दिखती है। तो पोइट अपने मदर के फेस को विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। एंड फेल दैट ओल्ड familiar ache, my childhood fear. The poet feels her old familiar pain of her childhood fear of losing her mother. She feels that pain coming back to her with the realization that her mother has become old and will not live long. पोइट को लगा जैसे उनका बचपन का अपनी माँ को खोने का दर्द और डर फिर से वापस आ गया है। बचपन में बच्चे अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है उनकी माँ उनको छोड़कर कहीं चली ना जाए, है ना। वो ही माँ को खोने का डर पोइट को लगा जैसे वापस आ गया है। उनको रियलाइजेशन होता है कि जल्द ही शायद उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। The poet hid her inner turmoil of pain, her fear, and smiled at her mother, reassuring her that they will meet again. The repetition of the word smile shows how she is trying to hide her emotions behind her forced smile. She is trying to be strong. पोइट कहती है उनका मन बहुत दुखी था और कहीं ना कहीं माँ को खोने का डर था, पर उन्होंने अपने डर को और दुख को अपने स्माइल के पीछे छिपाने की कोशिश करी और माँ को दिलासा दिलाया कि वो फिर मिलेंगे। स्माइल वर्ड का रिपीटिशन दिखाता है कि पोइट ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं और उसके पीछे अपना दुख दर्द छिपाने की कोशिश कर रही हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हैं। तुम लोगों ने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि ये पोम सिर्फ सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है और बीच में सिर्फ कॉमास हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। टेक केयर, बाय।